اللہ اما بعد۔ کل کے سبق میں درس میں ہم لوگوں نے چار حرفی آسان مرکب الفاظ لکھنا اور پڑھنا سیکھا تھا۔ لکھنا اور پڑھنا سیکھا تھا۔ دیکھیے ایک چیز بتاؤں میں، جیسے لام لادا کے جیسے لوگوں نے کچھ بتایا تھا، تو لام الف زبر لا کو بنانے کا انداز میں نے بتایا تھا۔ جیسے لام الف زبر لا بنائیں گے تو ایسا کریں گے، لام الف بنائیں گے تو ایسا کریں گے، کیا بولتے ہیں، لادا کو ہم بنائیں گے تو اس کے انداز الگ ہوگا۔ کچھ لوگوں نے الگ انداز میں اسے بنایا ہے، کچھ لوگوں نے الگ انداز میں بنایا ہے۔ تمام چیزیں ملا کر کے بنائی جائیں گی، تمام چیزیں ملا کر کے بنائی جائیں گی، الگ الگ نہیں بنایا جائے گا۔ اور جب تمام چیزیں ملا کے بنائیں گے تو ایسی صورت میں دیکھنے میں الفاظ کیا لگیں گے، اچھے لگیں گے۔ الفاظ دیکھنے میں اچھے لگیں گے، اور جب الفاظ دیکھنے میں اچھے لگیں گے تو خوبصورت نظر آئیں گے اور بھلے معلوم ہوں گے۔ سمجھ رہے نا؟ تو ایسا بنانا سیکھی، ہم بنائیں کہ جو اچھا لگے، جو پیارا لگے، جس کو ہم بنائیں تو کوئی بھی دیکھے تو کہے کہ بہت اچھی لکھاوٹ اور بہت اچھی تحریر ہے۔ جیسے لا ہم ایسا بنائیں گے، لا ہم کس انداز میں بنائیں گے، جیسے ہم بنائیں گے لام الف بنائیں گے تو لام الف جو ہم بنائیں گے تو ہمارے بنانے کا انداز کیا ہوگا، ہمارے بنانے کا انداز اور طریقہ کیا ہوگا، اسی طریقے پر ہم کیا کریں گے، بنانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طریقے پر ہم کیا کریں گے، بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ دیکھنے میں اچھا لگے، دیکھنے میں کیا لگے، اچھا لگے، بھلا لگے۔ اور دیکھنے میں جب اچھا لگے گا تو ایسی صورت میں کوئی بھی جب بھی آپ لکھیں گے تو ہر کوئی آپ کی کیا کرے گا، تعریف کرے گا۔ تو ایسے انداز میں ہونا چاہیے جو دیکھنے میں کیا لگے، اچھا لگے، دیکھنے میں اچھا لگے، بہتر لگے۔ ایسے طریقے سے ہم لکھنا شروع کریں گے۔ تو کل ہم نے چار حرفی آسان الفاظ پڑھا تھا۔ کل ہم نے کیا ہے، چار حرفی آسان الفاظ پڑھا تھا، اور آج ہم جو ہے پڑھیں گے کیا، دو حرفی مرکب، دو حرفی مرکب ہم پڑھیں گے۔ یہ دو حرفوں کو مرکب ملا کر کے کیسے پڑھا جائے گا، دو حرفوں کو ملا کر کے ایسے پڑھا اور لکھا جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں ہم، شکلیں دیکھ رہے ہیں، الف مد ازبر آ، با بنایا ہے، با کی آدھا شکل ہے، با کی آدھا شکل ہے، پھر آدھا شکل کے بعد کیا کیا ہے، الف بنا دیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ملا کر کے با بنائیں گے تو اس انداز میں ہوگا، ملا کر کے پا بنائیں گے تو اس انداز میں ہوگا، ملا کر کے تا بنائیں گے تو اس انداز میں ہوگا۔ ایسے ہی نیچے سے اوپر تک تمام حروف دیے گئے ہیں، اور نیچے والی لائن میں یہاں اس کی اصلی شکل بھی دے دی گئی ہے۔ نیچے میں ملا کر کے کیسے لکھا گیا اسے بتا دیا گیا، جیسے آ با، یہاں با الف ہے، پا الف ہے، تا الف ہے، سا الف ہے۔ اسی طرح جیم الف ہے، چا الف ہے، ہا الف ہے، خا الف ہے، دال الف ہے، زال الف ہے، را الف ہے، را الف ہے، زا الف ہے، زا الف ہے، سین الف ہے، شین الف ہے، سواد الف ہے، زواد الف ہے، تو الف ہے، غو الف ہے، عین الف ہے، غین الف ہے، فا الف ہے، قوف الف ہے، کاف الف ہے، گاف الف ہے، لام الف ہے، میم الف ہے، نون الف ہے، واو الف ہے، ہا الف ہے، اور یا الف ہے، اور یا الف۔ تو یہاں با کو الف سے ملایا گیا ہے،
पा को अलिफ से मिलाया गया है। ऐसे ही या तक तमाम वर्ड के साथ, तमाम हरूफ के साथ क्या मिलाया गया है? अलिफ को मिला करके लिखा गया है। अलिफ को मिला करके लिखा गया है। ये बताने के लिए ये बताने के लिए कि इनके बनाने का अंदाज और तरीका यही होगा, इनके लिखने का अंदाज और तरीका यही होगा। ठीक है, तो हम इससे समझ जाएंगे कि लिखने का अंदाज और तरीका क्या होगा। ठीक है, चलिए हम आगे पेज पे देखते हैं। अगला पेज जो हमारा है, जहाँ दो हरफी जबर के साथ मिला करके हमें बताया गया है कि कैसे हम ये पढ़ना सीखेंगे। दो हरफी आसान अल्फाज कैसे हम लिखना सीखेंगे, कैसे हम पढ़ना सीखेंगे। यहाँ हम देखिए, पहला जो है जबर है। पहला क्या है सबक है, ये जबर का है। यहाँ शुरू से लेकर आखिर तक दो हर्फ को मिला करके लिखा गया है। पहले मैंने बताया था दो हरफी आसान अल्फाज में, तीन हरफी आसान अल्फाज में जो अल्फाज आए थे, जो हरूफ आए थे, सब अलग अलग लिखे गए थे। ये अलग बात है कि उन्हें मिलाकर पढ़ा जा रहा था। लेकिन तीसरे सबक में चार हरफी आसान मुरक्कब में यहाँ दो हरफों को मिला करके लिखा गया है। यानी और दोनों एक साथ लिखे गए हैं, तो एक हरफ की शक्ल बनी है कि ये शक्ल रहेगी, दूसरे हरफ की शक्ल बनी है कि दूसरे हरफ की शक्ल ये रहेगी। ऐसे ही जबर में भी दो हरफों को मिला करके लिखा गया है। दो हरफों को मिला करके लिखा गया है, और यहाँ भी उसकी शक्ल बताई जा रही है, किस किस शक्ल पे वो हरफ बनेगा। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, पहला लफ्ज जो है चा और लाम है। चा और लाम है जो मिला करके लिखा गया है। क्या है? चा और लाम है जो मिला करके क्या किया गया है? लिखा गया है। लाम दोनों मिला करके क्या किया गया है? लिखा गया है। तो ये यहाँ जो हम पढ़ना सीखेंगे, पढ़ना सीख रहे हैं, किसको सीख रहे हैं? दो हरफी, दो हरफी आसान अल्फाज हम पढ़ना क्या करें? सीखेंगे। दो हरफी आसान अल्फाज हम क्या करेंगे? पढ़ना सीखेंगे। दो हरफी आसान अल्फाज क्या करेंगे? हम पढ़ना सीखेंगे। और वो क्या है? चा है और लाम है। चा है और लाम है, हा और लाम है, पा और लाम है, नून और लाम है। और यहाँ जबर दिया गया है, पहले हरफ पर जबर दिया गया है, और पहले हरफ को दूसरे हरफ से मिला करके हमें पढ़ना है। पहले हरफ को दूसरे हरफ से मिला करके क्या करना है? हमें पढ़ना है। दूसरे हरफ से मिला करके हम पढ़ेंगे, तो ऐसी सूरत में उसकी वो एक लफ्ज बन जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम पढ़ेंगे चा लाम जबर चल, हा लाम जबर हल, पा लाम जबर पल, नून लाम जबर नल। तो चा और लाम मिलाए, हा और लाम मिलाए, तो चा जब दूसरे लफ्ज के साथ मिलेगा तो उसकी शक्ल यही बनेगी। जैसे पीछे आप देखिए, वहां आपके यहाँ दिया गया है, चा को अलिफ के साथ मिलाया है तो यही शक्ल बनी हुई है। चा को अलिफ के साथ मिलाया तो उसकी शक्ल यही बनी हुई है। ऐसे ही हा लाम जबर हल, हल की भी वही पोजीशन है। देखिए, हा और अलिफ जो आया हुआ है, तो हा की शक्ल जो यहाँ है, सेम वही शक्ल वहां है। ऐसे ही पा लाम जबर पल,
पा लाम जबर पल। यहाँ जो है पा की शक्ल जो बनी हुई है यहाँ दो हरफी मुकर्रब अल्फाज में, वही शक्ल सेम यहाँ बनी हुई है। ऐसे ही नून लाम जबर नल, तो यहाँ दो हरफ को मिला करके पढ़ना सिखाया जा रहा है, और ये जबर के साथ है। किसके साथ है? जबर के साथ, क्योंकि जेर जबर जेर पेश, ये तीन हरकतें होती हैं, और तीनों हरकतों के साथ हुरूफ बनते हैं, हुरूफ लिखे जाते हैं, हुरूफ पढ़े जाते हैं। हुरूफ लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं। इसीलिए तीनों हरफों के साथ मिलाकर लिखना और पढ़ना हमें ये सिखा रहे हैं, ताकि हमें लिखने और पढ़ने में कोई दुश्वारी और दिक्कत ना हो। दुश्वारी और दिक्कत क्या हो? ना हो। तो जैसे देखिए चा बना हुआ, तो चा लाम जब चल हम करेंगे तो ऐसा कह दिए, चा ऐसा चल हो गया, चल हो गया। या इसी तरह ए, अगर चल बनाना है तो देखिए यहाँ हम चल बना रहे हैं, तो अब देखिए चा लाम ये ऐसा, चा लाम चल, ये चल बन गया। देखिए तो यहाँ चा की शक्ल है, चा की शक्ल बनी हुई है, तो ये चा है, और इसके साथ लाम मिलाया तो ये चल हो गया। ऐसे ही नल को, नल है, अब ये नून है, अब लाम मिला दिया तो नल हो गया। अगर ऊपर का नुक्ता हम खत्म कर दें, ऊपर का नुक्ता खत्म कर दें और उसको हम इस अंदाज में लिख दें, ये ऐसा, और ऐसा कर दे तो ये हा बन गया। ऐसा कर दे तो क्या बना? हा बन गया। तो ये हा की शक्ल बनती है। नीचे से हम लटका करके लिखेंगे, नीचे से हम क्या करेंगे? ऐसा करेंगे और ऐसे खींच देंगे तो ये हा बन जाएगा। ये क्या बनेगा? हा बनेगा, हा की शक्ल बनेगी, हा की शक्ल बनेगी। ऐसे ही पहले में तो लाइन हो गया चल हल पल नल, चा लाम जबर चल, हा लाम जबर हल, पा लाम जबर पल, नून लाम जबर नल। और तीसरा जो है मीम के साथ, पहले में लाम के साथ मिला हुआ है और दूसरे में जो है मीम के साथ हरफ हुरूफ मिले हुए हैं। तो पहला लफ्ज क्या बनाया? बम बनाया। पहला लफ्ज क्या बनाया? बम बनाया। क्या बनाया? बम। बम हमें लिखना है तो क्या करेंगे? ऐसा हमने किया, ऐसा कर दिया तो ये बम बन गया। ये क्या बन गया? बम बन गया। या ऐसा हमने किया फिर ऐसा कर दिया तो ये बम बन गया। ये बम बन गया। या इसी तरह अब उसको और शक्ल में बनाना है हमें, तो ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ये बम बन गया। ये क्या बना? या और भी शक्ल में हमें इसको बनानी है, दूसरे शक्ल में, तो हम कैसे बनाएंगे? ऐसा कर दिया, ये ऐसा, ये हम बम बन गया, ये बम बन गया। ऐसे ही हम नीचे के बजाय ऊपर नुक्ता रख देंगे तो नम बन गया। नीचे के बजाय ऊपर नुक्ता रख देंगे तो नम हो जाएगा। तो ये नीचे नुक्ता नुक्ता रखने से बम बन जाएगा, ऊपर नुक्ता रखने से क्या बनेगा? नाम बन जाएगा। अब आगे जो है काफ के साथ मिला हुआ, तो काफ जो है ये ऐसा, ये काफ है। अगर मीम बना दिया तो कम हो गया, मीम बनाया तो क्या हो गया? कम हो गया, ये कम बन गया। तो बा नून मीम, बा मीम जबर बम, नून मीम जबर नम, काब मीम जबर कम, दाल मीम जबर दम। तो पहले में पहला वर्ड, पहला हर्फ अलग है, लेकिन आखिर वाला हर्फ, दूसरा हर्फ जो है लाम ही है। गोया कि दूसरा हर्फ सेम सेम है। पहला हर्फ एक दूसरे में बदला हुआ, पहले में चा है, दूसरे में हा है, तीसरे में पा है, चौथे में नून है। ऐसे ही दूसरी लाइन में, दूसरी सतर में भी दूसरा हर्फ जो है एक ही है और वो मीम है। दूसरा हर्फ क्या है? एक ही है और वो क्या है?
मीम है। वो क्या है? दूसरा हर्फ एक ही है, और वो क्या है? वो मीम है। लेकिन पहला हर्फ जो है चारों में अलग अलग है। पहले में बा है, दूसरे में नून है, तीसरे में काफ है, चौथे में दाल है। तो ये बम, नम, कम, दम बन गया। ये हो गई शक्ल। अब तीसरी लाइन पे आते हैं। तीसरी लाइन में जो है आखिरी हर्फ, दूसरा हर्फ जो है रा है। पहली लाइन में दूसरा हर्फ लाम है, दूसरी लाइन में दूसरा हर्फ मीम है, और तीसरी लाइन में दूसरा हर्फ सब में क्या है? रा है। सब में क्या है? रा। रा ऐसा हम लिखते हैं। रा के लिखने का अंदाज यही होता है। रा के लिखने का अंदाज ये रा बन गया। हमने उसी के साथ ए ऐसा कर दिया, या ये कहिए ए ऐसा करके बना दिया, ये कर हो गया। ये कर हो गया। और ऐसा कर दिया, ऐसा तीन डॉट नीचे रख दिया, तो ये पर हो गया। क्या हो गया? पर हो गया। और ऐसा कर दिया हमने, ऐसा, तो ये सर हो गया। क्या हो गया? सर हो गया। यानी अगर सीन और रा के साथ मिला तो सर हो गया। जैसे बताया, ऐसा कर दिया, ये सर हो गया। या ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो ये कर हो गया। ऐसा कर दिया तो पर हो गया। तो सर, कर, पर। सर, कर, पर। यहाँ हम लिखते हैं सर, यहाँ लिखते हैं कर, यहाँ लिखते हैं पर। ये पर, ये तीनों हर्फ हो गए। सर, कर, पर। तो यहाँ जो है सर, कर, पर, तीनों में जो है रा को मिला करके पहले लफ्ज से लिखा गया है। और तीसरे में जो है रा और दोनों वर्ड जो है पहले जो हमने पढ़ा था, दो हरफी आसान, वो उसी जैसे दोनों हरफ अलग अलग आए हुए हैं। तो यहाँ समझ में आ जाता है, कोई मुश्किल नहीं। ऐसे ही चौथी लाइन है। चौथी लाइन में जो है दूसरा हर्फ काफ है। दूसरा हर्फ क्या है? काफ है। और पहला हर्फ चारों में अलग अलग है। पहले में पा है। पहले में क्या है? पा है। पहले में क्या है? पा है। दूसरे में ता है। तीसरे में बा है। और चौथे में शाह है। चौथे में क्या है? शाह है। तो यहाँ पा काफ जबर पक, ता काफ जबर तक, बा काफ जबर बक, और शीन काफ जबर शक। शीन काफ जबर शक। इस तरीके पर हो गया। जैसे हमको लिखना है पक, तो हम बनाएंगे कैसे? पा काफ पक। तो पा के नीचे तीन नुक्ता होगा तो पक हो जाएगा। और ता काफ जो तक हमें बनाना है, तो तीन, दो नुक्ता ऊपर रख देंगे, ये दो नुक्ता तो तक हो जाएगा। ये क्या हो गया? तक हो गया। और अगर एक नुक्ता हमने नीचे रख दिया, ऐसा करके बना दिया, तो ये बक हो गया। और अगर हमने सौसा डाल दिया यहाँ, और तीन नुक्ता ऊपर डाल दिया, तो शक हो गया। यानी तीन नुक्ता नीचे डाला तो पक हो गया, दो नुक्ता ऊपर डाला तो तक हो गया, एक नीचा नुक्ता नीचे रखा तो बक हो गया, और तीन नुक्ता ऊपर रखा तो शक हो गया। तो ये क्या हो गया? ये बक हो गया। ये शक हो गया। इस तरीके पर लिखेंगे। इस तरीके पर, इस अंदाज में क्या करेंगे? हम लिखेंगे। ऐसे ही नीचे जो है पहला वर्ड और दूसरे वर्ड में जो लफ्ज आया हुआ है दूसरा, ये दाल है ना। हम देखेंगे, देखा दिखाई देता है, क्योंकि रा की शक्ल हमने ऐसे पढ़ी है। रा की शक्ल हमने इसी तरह पढ़ी है, जैसे डर, राजबर डर, रा यहाँ आया है। तो हा के बाद जो वर्ड आ रहा है, जो लफ्ज आ रहा है, जो हर्फ आ रहा है, दिखाई देता है कि वो रा है, लेकिन रा नहीं है, ये दाल है। जैसे देखा आपने, तीन राजबर सर, सर में कैसे हमने क्या ऐसा कर दिया, सर हो गया। तो मिला करके जब रा को लिखेंगे तो रा की ये शक्ल बनेगी, या रा की ये शक्ल बनेगी, रा की ये शक्ल बनेगी, या रा की ये शक्ल बनेगी। लेकिन
جب ہم دال کو کسی لفظ کے ساتھ ملا کر کے رکھیں گے تو اس کی شکل دیکھنے میں را جیسی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ دال ہوگا، جیسے یہ ہا دال، یہ دال ہوگا، با دال، یہ دال ہے، یہ دال ہے، یہ را نہیں ہے، یہ دال ہے، یہ را نہیں ہے۔ میں نے دونوں میں فرق کیا ہے؟ اب اگر ہا اور را لکھنا ہے، ہا اور را لکھنا ہے تو اس کے لکھنے کا انداز کیا ہوگا؟ یہ ایسا لکھیں گے، ہر، یہ ہر ہو جائے گا۔ ہا را ملا کر کے لکھیں گے تو یہ ہا را ہو جائے گا اس سے، جیسے وہاں دیکھا پارازبت پر، ایسا لکھا ہم نے۔ لیکن ہاتھ دال زبر حد اگر ہم لکھیں گے، ہاتھ دال زبر حد، با دال زبر بد لکھیں گے تو ایسا لکھیں گے، ایسا لکھیں گے۔ تو یہ جو ہے، یہ جو ہے لفظ جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ لفظ کیا ہے جو یہاں دکھائی دیتا ہے؟ یہ جیسے میں نے لکھا، یہ لفظ جو ہے یہ دال ہے، اور یہ لفظ جو ہے یہ ہاں ہے، یہ دال ہے، یہ دال ہے، یہ کیا ہے؟ دال ہے۔ لیکن الگ لکھیں گے دال کو تو اس شکل پہ لکھیں گے، اور ملا کر کے لکھیں گے تو یہ شکل اس کی بنے گی۔ دونوں میں یہی فرق ہے، دونوں میں یہی فرق ہے۔ را کو جب کسی لفظ کے ساتھ ملا کر کے لکھیں گے تو یہ شکل بنے گی، یہ شکل بنے گی، یہ شکل بنے گی، یہ شکل بنے گی۔ اور ایسے ہی دال کو ملا کر کے لکھیں گے تو ایسا بنے گا، ایسا بنے گا، ایسا بنے گا، یعنی حد بد صد، حد بد صد، یہ شکل پہ بنیں گے۔ تو دال کی شکل جو دکھائی دے گی را کی ہوگی، لیکن را بتایا، را کو کسی لفظ کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو یہ شکل نہیں ہوگی، اس کی شکل یہ ایسا ہوگی، اس کی شکل الگ ہوگی۔ تو یہی تمام حروف میں فرق ہے۔ تو یہاں بتایا چل، ہل، پل، نل، بم، نم، کم، دم، کر، پر، ڈر، سر، پک، تک، بک، شک، حد، بد، حد، بد، سو، سڑ، سو، سڑ۔ تو را اور را دونوں جب ملا کر کے لکھے جائیں گے دونوں کی شکل ایک جیسی بنے گی۔ رڑا ہوگا تو تا کی چھوٹا سا تو اس کے اوپر تو کی شکل بنا دیں گے تو را بن جائے گا۔ اگر شکل تو کی نہیں بنی ہوئی ہے تو را رہے گا، جس کو میں نے کہا تھا اس کو تائے تلی بولتے، تلی، کیونکہ تو کی شکل میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہوگی میرے خیال سے۔ ٹھیک ہے، میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی اسے پڑھے اور پڑھ کر بتائے، دیکھتا ہوں کہ کیا آپ سب نے سمجھا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ میں سے کون پڑھیں گے؟ کوئی اسے پڑھیں؟ شروع سے پڑھیے۔ چار لام زبر چل، ہوں، ہا لام زبر ہل، ہوں، پا لام زبر پل، ہوں، نون لام زبر نل، ہوں، با میم زبر بم، ہوں، نون میم زبر نم، کاف ہوں، میم زبر کم، ہوں، دال میم زبر دم، ہوں۔ کافرے زبر کر، پا کافرا کرا۔ را، کاف را ہوں، زبر کر، پا ہوں، را، پے را زبر پر، پا پا، یہ بھی پا، دال پا۔ را زبر در، ہوں، تین را زبر سر، ہوں، پے کاف زبر پک، پا پا پڑھیے۔ پا کاف زبر پک، تا ہوں، کاف زبر تک، بات ہوں، کاف زبر بک، شین ہوں، کاف زبر شک، تے ہوں۔ دال زبر ہد، بے ہاں دال ہاں، زبر ہا ہاں اور دال با۔ زبر ہد، ہوں، با دال زبر بد، ہوں، تین واو زبر سو، ہوں۔ تین رے زبر سڑ۔ ہاں، بہت خوب، ماشاء اللہ، جزاک اللہ سن جزا۔ اور کوئی؟ دیکھیے، ہاتھ اٹھائی ہے۔
मैं क्या नाम है 121 उनसे कहूंगा कि आप पढ़िए। मैं कह रही थी सर इसके ना जुमले नहीं है। पढ़िए। कह रही थी इसके जुमले बनी है। हेलो। पढ़िए पढ़िए। ओके पढ़ रहे हैं। चल, हल, पल, नल, बम, नम, कम, दम, कर, पर, दर, सर, पक, तक, बक, शक, हर, हद हद दाल है हद। हद, बद, सौ, शर। हाँ, साड़ा साड़ बहुत माशाल्लाह जज़ाकल्लाह समझा। चलिए 111 नंबर। फिर इसके जुमले बनेंगे। चा लाम जबर चल, हा लाम जबर हल, पा लाम जबर पल, ना नून लाम जबर नल, बा मीम जबर बम, नून मीम जबर नम, काफ मीम जबर कम, दाल मीम जबर दम, काफ काफ रॉ जबर कम, पा काफ रास बर कर। सी अच्छा हाँ जी चलिए हाँ। जी पा रॉ पढ़िए। जबर पर, अ, हम्म, दाल दाल रॉ जबर दर, हम्म, सीन रॉ जबर सर, हम्म, पा काफ जबर पक, ता हम्म, ता ता काफ जबर तक, बा हम्म, काफ जबर बक, हम्म, शीन शीन काफ जबर शक, हा दा, हा दो हा दाल हाँ, जबर दा, हद, हम्म, बा दा जबर बद, सीन वाव जबर सौ हम्म, जी, शीन शीन रा शीन रॉ रॉ शीन रॉ शीन रॉ रॉ जबर शर। साड़ा साड़ा। ठीक है बहुत खूब माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ठीक है चलिए 118। क्या? हम्म, अस्सलाम वालेकुम शेख। चा लाम जबर चल, हा लाम जबर हल, पा लाम जबर पल, नून लाम जबर नल, बा मीम जबर बम, नून मीम जबर नम, काफ मीम जबर कम, दाल मीम जबर दम, काफ रॉ जबर कर, पा रॉ जबर पर, दाल रॉ जबर डर, सीन रॉ जबर सर, पा काफ जबर पक, ता काफ जबर तक, बा काफ जबर बक, शीन काफ जबर शक, हा दाल जबर हद, बा दाल बा दाल जबर बद, सीन वाउ जबर सौ, सीन हम्म, अड़ा जबर रा सड़। साड़ा साड़ा बहुत खूब माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। चलिए 130 नंबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। शीम ला शीम लाम जबर चल, हा लाम जबर अच्छा हल, अच्छा। पा चा लाम पढ़िए चा। चा 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 लाम लाम जबर चल, हा लाम जबर हल, पा लाम जबर पल, नून लाम जबर नल, बा मीम जबर बम, नून मीम जबर नम, कॉफ मीम जबर कम, दाल मीम जबर दम, काफ रॉ जबर कर, पा रॉ जबर पर, रा रॉ जबर डर, सीन रॉ जबर सर, पा काफ जबर पक, ता काफ जबर तक, बा काफ जबर बक, शीन काफ जबर शक, हा दाल जबर हद, बा दाल जबर बद, सीन वाव जबर सौ, सीन डा जबर सड़। बहुत खूब माशाल्लाह जज़ाकल्लाह समझा। तो ये पढ़ने का अंदाज होगा। तो कल जो है कल तो दुआ रहेगा।
لیکن اگلے ہفتے میں یا آپ کو جو ہے جو جن کو لکھنا نہیں آتا ہے یا معمولی لکھنا آتا ہے وہ لوگ جو ہے اسی کو لکھ کر کے بھیجیں گے، اور جن کو لکھنا آتا ہے وہ لوگ یہ الفاظ کو کسی لفظ کے ساتھ ملا کر کے لکھیں گے۔ جیسے ہم نے لکھا راہ چل، پل تک چل، گھر تک چل، ہل چلا، ہل چلا، ہل یہ ہل ہے، ایک ایک پل یہ نل ہے۔ تو اسی طرح بنا کر کے لکھ کے لائیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔